ये ना ये उस बात का सबूत है कि फिल्म्स डिवीजन ने, फिल्म प्रभाग ने इस रूप को तोड़ दिया और ये कमाल की बात है। एंड माय हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। I know how difficult it is to make a documentary, not only to make a documentary, but to have it shown and also to have it appreciated. उसको इस मंच पे स्थापित करें। कोई संस्था में कुछ नहीं कर सकता। जब पूर्ण प्रभाग का सहयोग होता है तभी ऐसा कार्य निष्पन्न हो सकता है। आज मंत्री जी ने दीप प्रगटाया, तो जिसको कहते हैं तमसोमा ज्योतिर्गमय। तो हम यही इच्छा और उम्मीद उनसे रखते हैं कि वो हमेशा हमें प्रेरणा दें, हमेशा हमारे साथ चलें और ये प्रभाग की प्रगति के लिए जो कोई बाधा है या आए उसको दूर करते चलें, ताकि हमारा प्रभाग और अच्छा कार्य अलग अलग क्षेत्रों में कर सके। Which is something we all must be most proud about. I would like to take this opportunity to congratulate all the award winners for their splendid achievements, and of course the Films Division for commissioning and producing these films. The Films Division, in its earlier avatar as Information Films of India, was created by the British government in India during the Second World War, primarily to gather news on motion picture film and produce newsreels and documentaries and other propaganda films to create an awareness about its war effort and to motivate people to perhaps join even the army. After the independence, its role was expanded. Apart from producing newsreels, it was entrusted the job of spreading information and awareness about our developmental effort. Films Division performed this task with full responsibility. Two things happened. One, in the area of documenting on film the historic, it will be preserved and will not get lost because of indifference. The second thing that happened was not very complimentary to the Films Division, unfortunately. What may be called rather boring propaganda films, a kind referred to as FD kind of documentary, which normally meant a very dull and tedious kind of work, and rectified all the time. While this criticism was happening, something else was also happening at the Films Division. Do some of the most exciting short films and documentaries, particularly when Mr. Jean Bhavnagri was invited to be with the Films Division for a few years. Mr. Bhavnagri, with his belief in filmmaker as an artist with the sun in his belly, fired the imagination of several young directors in the Films Division and outside, who produce some of the most exciting and experimental work seen since independence. That was also a period of experimentation in music, and Mr. Vijay Raghav Rao was in charge here, and he contributed tremendously. सबसे पहले मैं अभी कार्यक्रम के शुरुआत में
टॉम एल्टर जी की बात सुन रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि जब पहले फिल्में हम लोग देखते थे, अच्छी अच्छी फिल्में, और उस वक्त फिल्म से पहले फिल्म प्रभाग की प्रस्तुति आती थी, तो थोड़ा बोरिंग लगता था और लगता था कि ये कहाँ आ गया है, फिल्म शुरू हो जल्दी। लेकिन ऐसे वक्त में जबकि हमारे फिल्मों का स्तर गिरा है, ऐसे वक्त में जबकि लोग फिल्में, अधिकांश फिल्में, सभी फिल्में मैं नहीं कह सकता, लेकिन अधिकांश फिल्में देखने में ये ऐसा उन्हें महसूस होता है कि वो कुछ उन फिल्मों को देखने के बाद हासिल नहीं कर रहे हैं। उस वक्त में जिस फिल्म प्रभाग को कहा जाता था कि बहुत बोरिंग है, ऐसे समय में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों को पाना फिल्म प्रभाग की फिल्मों का, इस बात का प्रमाण है कि फिल्म प्रभाग ने निश्चित तौर से एक बहुत अच्छा काम किया है, जिसे कि देश के सभी लोगों को सराहना है।
डॉक्यूमेंट्रीज और विभिन्न समाज के छुए अछुए पहलुओं को उजागर करते हुए फिल्में बनाई, उसका प्रभाव बहुत अच्छा रहा और उसको अवार्ड मिला। अवार्ड के साथ ही साथ समाज के हर हिस्से में एक बहुत अच्छा मैसेज दिया। उससे प्रभावित होकर हम लोग विचार कर रहे हैं कि फिल्म प्रभाग या और भी हमारे जो विभाग हैं, डीसी है या और विभाग है, उनको प्रोत्साहित किया जाए कि वो अच्छी फिल्में और इस तरह की फिल्में जिन फिल्मों से मनोरंजन होना चाहिए, उसके साथ ही साथ समाज में एक अच्छा मैसेज हर वर्ग में हर तरह से जा सकता है या फिल्म है, इसका महत्व बहुत बढ़ गया है। जिस तरह से कई पड़ोसी देशों ने, जैसे कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला सा कर रखा है कि अपने जो फिल्म प्रभाग होंगे या जो विभाग होंगे, जिस तरह से हिंदुस्तान की तस्वीर वो दिखा रहे हैं, क्योंकि इजली हमारे बॉर्डर स्टेट्स में बहुत आसानी के साथ उनकी जो भी चीज़ दिखाना चाहते हैं वो कैच करती है और लोग देखते हैं। हम उसको काउंटर नहीं करना चाहते, हम उसको काउंटर करने की आवश्यकता भी महसूस नहीं करते, लेकिन हम ऐसी पॉजिटिव चीज़ें तो दिखा सकते हैं जिससे कि जो उन्होंने हमारी संस्कृति पर और समाज को तोड़ने के लिए एक खतरनाक साजिश कर रखी है, उसका जवाब आसानी से दिया जा सके। वहाँ के लोगों कहती है कि इसी तरह से हिंदुस्तान में जो भी इस क्षेत्र में लोग हैं, जो भी सरकारी संगठन हैं, उनको काम करना चाहिए और इसलिए फिल्म प्रभाग ने जो भी प्रयास किए उसको बधाई की बात है। इसके साथ ही पिछले दिनों जो पाकिस्तान ने पिछले 2 बार टेररिज्म के नाम पर, मुझे लगता है कि वो हमले जो भी पाकिस्तान ने किए हैं, जो हत्याएं की हैं इनोसेंट लोगों की, बेगुनाहों की, वो किसी भी तरह से माफ करने लायक नहीं है। सवाल है सिख है ईसाई है, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जिस तरह से हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान का कोई बेगुनाह आदमी मरे, हम नहीं चाहते कि कोई इसी तरह का हम। पिछले दिनों खासतौर से आडवाणी जी के चार्ज लेने के बाद जो वहाँ पीस प्रोसेस था वो बहुत तेजी के साथ वहाँ किया है। फिल्म को यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स हो सके, उसके लिए हर स्टेट गवर्नमेंट से बात की है और इस सिलसिले में हम लोग बहुत जल्दी ही उसके अलावा हमें इतना ही कहना है, आज आप लोग जो भी पूछना हो पूछिए। तो ये मुद्दा उठा था और इस मुद्दे पर हम लोगों ने काम शुरू किया है और किस तरह से इसको कंपलसरी किया जाए, वो कि जो भी फिल्म प्रभाग की फिल्में हैं और जो उनको दिखाया जा सके, उसके बारे में आप क्या करें? किस तरह का कोऑर्डिनेशन? NFDC तो फिल्में बनाती है, FD बनाती है, डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेशन फिल्म बनाती है और DD एक आपका तीसरा माध्यम दिखाने का काम करता है। तो ये क्या तीनों का कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता? लेकिन अलग अलग तरह से स्वतंत्र रूप से अगर ये विभाग अपने अपनी तरह से काम कर रहे हैं और एक ही उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें भी कोई हर्ज नहीं। बात ऐसी है कि FD पहले क्या कर रही थी उसमें हम ब्यौरे में नहीं जाना चाहते, लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि हम मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल के साथ ये बात कह रहे हैं कि जिस जो ये हरकतें हैं उनको हम अब नहीं होने देंगे, कुचलेंगे। और जब कुचलेंगे कह रहे हैं तो निश्चित तौर से हमारा बिल्कुल स्पष्ट मत है कि जो कुछ भी हुआ, हम अब हिंदुस्तान के बेगुनाह लोगों के खून को नहीं बहने देंगे। एक दोहरा, अब इसके